school teacher, his wife and their 2 children were shot dead by some unknown men at their home in Uttar Pradesh's Amethi. Some armed men barged into the teacher's house, opened fire on all the members and fled the scene. Victims, identified as Sunil Kumar, his wife Poonam, and their 2 daughters, aged 5 and 2, were living in a rented house near the Ahorwa Bhavani crossing. Superintendent of Police Anup Kumar Singh confirmed all angles were being investigated into, including a legal dispute involving Sunil. A case has been filed by Poonam on August 18th and is being considered as a potential lead in the case. It was filed against one Chandan Verma, accusing him of harassment, assault and threats to kill. Police is also investigating those against whom the case was registered. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath assured strict action against the culprits and has asked his officers to be at the crime site. Sunil was a government school teacher employed at the Panhona Composite School in the Singhpur block. Prior to becoming a teacher in 2020, he had served in the Uttar Pradesh police as well. All 4 victims were rushed to a hospital where doctors declared them brought dead. Meanwhile, Amethi MP Kishori Lal Sharma has raised concerns about the government's handling of a recent incident, criticizing both the administration and the police. He called for a thorough investigation, demanding that strict action be taken against the culprits. Let's take a look at what's been said by the MP in Amethi. ये बड़ा जघन्य अपराध है। पहली बार लगा रखा तो ये मैं कल से इस परिवार के संपर्क में, उनके पिताजी के संपर्क में, हमारे कार्यकर्ता रिंकू जी से कल मेरी बात हुई थी। उनके पिताजी से मैं लगातार टच में हूँ। तो उनके पिताजी ने भी कुछ चीजें बताई जो आप ही लोग बता रहे हो कि एक FIR हुई थी वहाँ पे। तो उसका भी मैंने DM अमेठी से बात किया था कि भाई ये भी एक देखिए, इस एंगल से भी देखिए, कोई और एंगल भी है इसके अंदर तो उसको भी देखिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनका इन्वेस्टिगेशन आ जाए कि उनका क्या कहना है। लेकिन ये अपने आप में कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है यूपी में, उसका एक उदाहरण है, क्योंकि सरकार अपनी पीठ तो थपथपा रही है कि हमारे यहाँ बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है। अगर बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है तो ऐसे अपराध क्यों हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? Meanwhile, Rahul Gandhi reviewed the case, speaking with the Amethi MP Kishori Lal Sharma to understand the entire situation. Rahul firmly directed Kishori Lal Sharma to stay committed to securing justice for the victims in this very case. This is the particular story that we bring to you concerning one, that too from Amethi in Uttar Pradesh. Family of 4 shot in Uttar Pradesh's Amethi. फादर भी यही शक जाहिर कर रहे हैं, तो लेकिन ये क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, संज्ञान लिया अच्छे से कर रहे हैं लोग। तो मेरा यही कहने का बस मेरा यही है कि राहुल जी का भी यही कहना है, उसको बख्शा नहीं जाए, तो उसमें कोई कोताही नहीं रहती। ठीक है, तुम भेजो नहीं। छेड़छाड़ हुई थी तो उसको लेके मतलब उसके फादर भी यही शक जाहिर कर रहे हैं, तो लेकिन ये क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, संज्ञान लिया अच्छे से कर रहे हैं लोग। तो मेरा यही कहने का बस मेरा यही है कि राहुल जी का भी यही कहना है, उसको बख्शा नहीं जाए, तो उसमें कोई कोताही नहीं। अब जैसे बुजुर्ग को फोन मारा, इसने मारा, इतने आदमी रहे, तो शायद इसको हम क्या जाएंगे। हम अपने घर में हैं, हमको जो खाना वाना खाए, 8:30 बजे तक हम लड़के के पास फोन हरदम लगाते थे, बेटा क्या हाल है, हमारी नाती खाना खाए कि नहीं खाए, पापा नहीं, तो वही पढ़ रोज डेली 9 बजे 8 बजे का। और आप जब गायब किया मैंने फोन ना, तो ना हमारी बहुरिया उठाई, ना हमारे लड़का उठाई, तो वो वहाँ पे शायद कार्रवाई तो ऐसा है जिसका हमने करती उनको बोल देना है कि मतलब माफ ठीक है भैया, मैं ना पुलिस के भी कॉन्टैक्ट में हूँ, सबके हैं जो 2-3 चीज़ें बताई हैं, उनको थोड़ा कॉम्पनसेशन मिलेगा समाज कल्याण से, तो वही पुलिस रिपोर्ट करेगी, उसके बाद होता है वो सारा मैं करवाई जाऊँगा। तो जैसा भी होगा शाम
Ladies and gentlemen, those were the visuals. In fact, these were live shots that we were bringing to you from Amethi, wherein we see Kishori Lal Sharma has in fact gone to the very place where this particular incident has taken place to meet the family members of the victims, of the four who have been brutally killed. And in the particular visual, you could see one of the family members in fact speaking to Rahul Gandhi over this very matter. Right now, we have some more responses on this given case. Let's take a look at them. हम यहीं चौराहे पर ही थे। हमारा खेत है तो ये आवारा पशु बहुत परेशान करते तो हम उन्हीं को देखा करते हैं। तो लगभग 7 बजे यहाँ पूजा पंडाल में जब आरती शुरू हुई, उसके तुरंत बाद जो है ये मनोहर मेडिकल स्टोर जो बगल में है, इन्होंने आके पुलिस को सूचना दी कि हमारे यहाँ कुछ फायर हो रहे हैं। तो हम लोग भी वहाँ भागे, पुलिस भी वहाँ गए। तो हम लोगों ने वहाँ जाके देखा तो सब कुछ हो चुका था। मतलब ये बताया जा रहा है कि पीछे से ये लोग निकल सकते हैं, क्योंकि इस हत्या को अंजाम देने के बाद वो लोग आगे से नहीं गए। नहीं, बगल वाले ने सुना, मनोहर ने उसको सुना, लेकिन जब तक कुछ समझते तब तक सब कुछ हो गया था। 7 और 7:20 के बीच में वारदात हुई। आवाजें बहुत, मतलब साउंड की आवाज ज्यादा आ रही थी। इधर से किसी को जान नहीं मिला। नीचे मेडिकल स्टोर है, अमित मेडिकल स्टोर, जस्ट नीचे उसी बिल्डिंग के। तो वो भाग के आए, यहाँ बताया सिपाही को। जब तक यहाँ से जाते तब तक वो निकल चुके थे। क्योंकि आगे से नहीं निकले, पीछे से किधर से निकल गए ये पता नहीं चला। ना आप लोगों ने आगे से निकलते हुए आगे से किसी ने नहीं देखा निकलते, क्योंकि आगे तो पब्लिक थी, दुकानें थी। तो क्या लग रहा है पीछे, क्या यही जो हिस्सा यहाँ से? हाँ, पीछे से इधर छतें हैं, जुड़ी हुई हैं, कई छतें दूर तक जुड़ी हैं, उधर तक जुड़ी हैं। तो वारदात करने के बाद वो पीछे से कूद के निकल गया। अब ये नहीं पता चला कि कितने लोग थे। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक दलित परिवार की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई है और मौके का मुआयना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह पहुंचे हैं। सर, आपने अंदर का मुआयना किया, पुलिस अधिकारियों से बातचीत की है, क्या कुछ लग रहा है, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया और किस तरीके से नृशंस तरीके से इस हत्याकांड को उस हत्यारे ने अंजाम दिया? देखिए, ये जो भी हुआ है बहुत ही दुखद है और इस तरीके से हत्या मेरे ख्याल से मानसिक रूप से जो थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा, क्योंकि 1.5 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची इस तरह के हत्या करना, कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि कुछ मानसिक स्थिति उसकी भी ठीक नहीं रही। विकृत कह लीजिए आप, ठीक क्या मतलब। और लगभग सारा प्रदेश सबके सामने है। धीमे धीमे अभी सब कुछ पता लग जाएगा। अभी हमारी प्राथमिकता है कि हम लोग अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, क्योंकि उसके घर में भी सब इस समय जो वहाँ का वो मूल निवासी है, उसके घर वाले भी घर पे नहीं है। तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी वो पकड़ भी जाएगा और उसके बाद फिर सारी चीज़ के खुलासा। आप अंदर गए थे, आपने जहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसका मुआयना किया। पुलिस इस पूरे मामले में 12 घंटे के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कुछ बता रहे हैं? क्या मॉडस ऑपरेंडी निकल कर आ रही है? हत्या का कारण क्या बताया जा रहा है? ये मुझे ख्याल से थोड़ा सा समय दीजिए। मेरे हालांकि जानकारी लगभग सब कुछ आ गई है, लेकिन अभी मोटी मोटी बात अगर आप मेरा अभी इसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा। पुलिस जो है अपने आप ब्रीफिंग करेगी, उसमें सारी चीज़ें बताएगी और मेरे ख्याल से ब्रीफ भी पुलिस को करना चाहिए, क्योंकि सारी इन्वेस्टिगेशन वो कर रही है और मेरे ख्याल से अगले 5-7 घंटों में हर चीज़ की ब्रीफिंग पुलिस कर देगी। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर मायावती ने सवाल खड़े किए गए। हालांकि सरकार ये कह रही है कि हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उस पर मुकदमा था, समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। कठोर कार्रवाई की गई होती शायद ये हत्याकांड नहीं होता और ये परिवार आज जिंदा होता, क्योंकि मामला एक दलित परिवार से जुड़ा हुआ है। देखिए, कार्रवाई जो भी हुई है कठोरी हुई है, ऐसा नहीं है। उसमें भी जो है चार्जशीट, जो FIR हुई थी, चार्जशीट हो गई है उसमें। और कभी कभी ऐसे समय में ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं जिनमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, और अचानक अगर मान लीजिए मैंने अपने मन में कुछ सोच लिया है तो कोई दूसरा उसको कैसे जान पाएगा। तो इस तरह से ये घटना हो गई है, दुखद है। और लेकिन सरकार अपने ज़ीरो टॉलरेंस पे है, किसी भी सूरत में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और कठोरतम कार्रवाई करेंगे और न्याय तक जो है इस परिवार को पहुंचाएंगे।
धन्यवाद सर बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मौके का मुआयना करने के लिए पहुंचे और ये बता रहे हैं कि सरकार लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। इस वक्त मैं अमेठी के उसी जगह पर खड़ा हूं जहां कल इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। सीधे हम आपको दिखाते हैं, इस वक्त सरकार के मंत्री और कुछ पुलिस अधिकारी घटनास्थल का मुआयना करने के लिए आए हैं। यहीं पर आप देखेंगे सामने ब्लड स्पॉट्स आपको नजर आएगा, कुछ पुलिस के ऑफिशियल्स हैं इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और ये वो घटनास्थल है, यहीं पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इसी जगह पर 4 लाशें बरामद हुई हैं, पति, पत्नी और 2 बच्चों को बहुत ही निर्मम तरीके से इसी जगह पर हत्या करी है। गोलियों की तड़तड़ाहट से कल ये पूरा इलाका गूंज गया था और नल के पास ही 4 डेड बॉडीज बरामद हुई हैं। वहां आपको ईंट नजर आएगी और लाल रंग का स्पॉट नजर आ रहा है। ये वो घटनास्थल है जहां पर बच्चों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और इसी नल के आसपास पति पत्नी की डेड बॉडी भी बरामद की गई है। इस वक्त पुलिस के आला अधिकारी कुछ सरकार के नुमाइंदों के साथ मौके का मुआयना कर रहे हैं कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, बदमाश किस तरफ से दाखिल हुए थे, किस तरफ से आए हैं, कहां पर गोलियां चली हैं, कहां पर पिस्टल बरामद हुआ है। क्योंकि मौके से अभी तक जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और जो पिक्चर्स बरामद हुई हैं उसमें 9 गोलियों के चलने का जिक्र है, एक पिस्टल की मैगजीन भी बरामद हुई है, इसके अलावा एक जिंदा कारतूस भी मौके से बरामद हुआ है। ये वो क्राइम स्पॉट है, फ्रंट की तरफ से इस गेट को लॉक रखा गया है। बताया जा रहा है कि संभवतः पीछे से या आगे से बदमाश इसमें दाखिल हुए थे, इस हत्याकांड को अंजाम दिया। महज 2 से 3 मिनट का वक्त लगा और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज गया। अब पुलिस के बड़े अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, सरकार के कुछ मिनिस्टर्स भी यहां पर आए हैं जो मौके का मुआयना कर रहे हैं और जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया था, किस व्यक्ति ने अंजाम दिया गया, मोटिव, इंटेंशन फिलहाल पुलिस खंगाल रही है। ये वो कमरा आपको नजर आएगा, ये जो ग्रीन कलर के दरवाजे आपको नजर आ रहे हैं, यही वो कमरा था जिसमें सुनील और उसका परिवार यहां पर रहा करता था। बीते 2 महीनों से परिवार यहीं पर रह रहा था और इस हत्याकांड को बीती शाम यहीं पर अंजाम दिया गया है। डेड बॉडीज यहीं पर बरामद हुई है। फिलहाल क्राइम स्पॉट को लॉक करके रखा गया है और इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया। हत्या का शक चंदन वर्मा पर जताया जा रहा है। चंदन वर्मा वो शख्स है जिसका कुछ दिन पहले इस परिवार से विवाद हुआ था, मारपीट, गाली गलौज हुई थी और चंदन वर्मा पर ही मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस बीच कई बार ऐसा मौका आया जब रायबरेली से चलकर चंदन वर्मा अमेठी आया और इस परिवार को लगातार धमकाता रहा और बीती रात इस घटना को अंजाम देने के बाद से वो फरार हो गया। फिलहाल पुलिस सर्विलांस, सीसीटीवी और आसपास के लोगों से बातचीत करने के बाद इस पूरे घटनास्थल के तार को खंगालने की कोशिश कर रही है और मोटिव और इंटेंशन जानने की कोशिश कर रही है कि कोई शख्स क्या सिर्फ महज एक मामूली मुकदमा दर्ज कराने की वजह से एक पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर सकता है। और सिर्फ सुनील और उसकी पत्नी पूनम ही नहीं बल्कि 2 मासूम बच्चे जिनका इस घटना से कोई कसूर नहीं था, इस मुकदमे से कोई लेना देना नहीं था, उनको भी बहुत निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर देता है।